Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Grace School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now, we will start lesson number 10, time. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you, look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will see what we had learned in this lesson in our last class. First we had learned the that mathematics lab activity 1. Here giving the some images. That images we are putting the that means for example I have breakfast. So when you are doing the breakfast we are putting here the timing in the clock. Then after we had learned the hours and minutes. So in our clock have a minutes and hours hand. The small hand is called the hours hand and that big hand is called the minutes hand. And some clock have a second hand also. Okay, some clock is present second hands and some clock is not present, but not present then also they are moving according to second. And 1 hour is equal to 60 minutes, 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. When one round is completed from the second, so 1 minute is coming and one round is completed from the minute, so 1 hour is completed. Then after we had learned the reading the time. Then after we had learned the interval times, means distance between that timing, how much is between timing. Then after we had learned the exercise 10.2 convert the hours. Convert the hours, then convert into the minutes and convert into the minutes. Then after we had learned the AM and PM from the night 12 to morning 11:59. रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 तक हम AM लिखते हैं. जब हम मोबाइल में अलार्म लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रात के 12 बजे तक सुबह के 12:59 तक हम लगाएंगे तो तब वहाँ पे AM दिखाता है. एंड 12 बजे दोपहर के आफ्टरनून के 12 बजे से लेकर रात के नाइट के 11:59 तक हम लिखते हैं PM. AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम एंड PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम. ओके, देखो 12 को जनरली मिडनाइट बोलेंगे, रात के 12 को जनरली मिडनाइट बोलते हैं एंड सुबह के 12 को मून नाइट बोलते हैं. आफ्टरनून टाइम क्या बोलेंगे? 12 आफ्टरनून बोलेंगे. ओके, सो ये हो गया हमारा AM एंड PM. Then after we had done the exercise 10.3 write the using AM and PM. AM कहाँ आता है, PM कहाँ आता है, ये हमने डन किया है. Now exercise 10.4 story sum on the time. So now look at first example. Ram started from his house at 8:30 a.m. Ram started from his house 8:30 a.m. and reached at the school 9:10 a.m. For how long did he walk? राम ने वॉक करना स्टार्ट किया उसके घर से 8:30 को और वो चलते चलते स्कूल गया और स्कूल में कब पहुंच गया? 9:10 को पहुंच गया. तो उसको कितना टाइम लगा है वॉक करने के लिए? उसको कितना टाइम लगा है वॉक करने के लिए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9:10 में से 8:30 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है कि उसको कितना वॉक करने के लिए टाइम लगा है. तो 9:10 में से 8:30 को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि जो राम है उसको स्कूल में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है. तो हम क्या करेंगे? स्कूल का जो टाइम है 9:10 AM उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 8:30 को. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. राम स्टार्ट वॉक फ्रॉम हिज हाउस. राम ने स्टार्ट किया वॉक करना उसके घर से 8:30 को. ओके, एंड रीचेड हिज स्कूल. स्कूल कब रीच हो गया है? 9:10 को रीच हो गया है. सो लॉन्ग डिड ही वॉक, तो वो कितना चला? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9:10 में से
9:10 AM में से 8:30 AM को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि उसको वॉक करने के लिए कितना टाइम लगा है। पहले तो AM ये कट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 10 है, 30 है। 10 में से 30 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे कैरी करके यहाँ पे हम 1, यहाँ जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देंगे, 8 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे और यहाँ पे 11 लिख देंगे। लेकिन 1 आवर्स इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं? ये जो डॉट के पहले ये आवर्स वाला नंबर से एंड डॉट के बाद वाला ये नंबर क्या है? मिनट से। तो हम ये जो आवर्स में से मिनट में कैरी करें, क्या करें? ये आवर्स है, आवर्स में से हम मिनट में कैरी करें। तो हमें पता है कि 1 आवर्स इक्वल टू, हमें पता है कि 1 आवर्स इक्वल टू कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट्स होता है। 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो जब ये जो आवर्स है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 60 + 10। ये 10 मिनट्स ऑलरेडी है, ये 10 मिनट्स ऑलरेडी है। ये 10 मिनट्स में हम 60 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70। अभी 870 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी 0 - 0 0, 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4 एंड यहाँ पे डॉट a - 8 0। तो जो राम है उसको घर से स्कूल में वॉक करने के लिए कितना टाइम्स लग रहा है? 40 मिनट्स लग रहे हैं। कितने मिनट्स हो रहे? 40 मिनट्स। फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए। देखो, राम ने स्टार्ट किया है वॉक करना घर से 8:30 को, स्कूल में कब रीच हो गया है? 9:10 को। हमें निकालना है कि वो कितने टाइम तक वो वॉक किया। तो हम क्या करेंगे? 9:10 में से 8:30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9:10 में से 8:30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अभी 10 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होता है। तो हमें पता है कि 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। क्या होता है? 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो अभी हम 60 मिनट और ये 10 मिनट्स, तो अभी हमें यहाँ से कैरी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कट करके हमने 8 लिख दिया है क्योंकि 1 आवर्स में से हम यहाँ पे मिनट में कैरी कर रहे हैं। और 60 + 60 हो गया, 60 मिनट यहाँ कैरी कर रहे, 60 मिनट्स प्लस ये 10 मिनट्स यहाँ पे ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 60 + ये 10, 70 हो गया। अभी ये 70 में से हम क्या करेंगे? 30 को माइनस करेंगे। 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40 आता है एंड यहाँ पे 8 - 8 0। मतलब उसको घर से स्कूल में वॉक करने के लिए कितना टाइम लगा है? 40 मिनट्स। कितना मिनट लगा है? 40 मिनट्स। हमने क्या किया है? ये आवर्स था, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसलिए 60 में हमने ये 10 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया 70। ओके, नाउ सेकंड नंबर। द स्कूल बस लेफ्ट द स्कूल एट द 7:30 AM। स्कूल की बस स्कूल से लेफ्ट हो गई 7:30 AM को एंड रिटर्न टू द स्कूल, और स्कूल में रिटर्न हो गई 9:20 AM को, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड बस टेक अ मेक अ मॉर्निंग राउंड। सो जो स्कूल की बस है वो कितने टाइम तक राउंड मारती रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कब निकली है? 7:30 AM को। कब रिटर्न आ गई? 9:20 AM को। तो हमें 9:20 AM में से 7:30 AM को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो जो स्कूल की बस है वो कितने टाइम तक बाहर थी। सेम जैसे फर्स्ट में किया था, सेम वैसे। ओके, द स्कूल बस लेफ्ट द स्कूल बस लेफ्ट द स्कूल। स्कूल बस ने स्कूल से कब लेफ्ट किया है? 7:30 AM को। रिटर्न ही स्कूल, और स्कूल में कब रिटर्न आ गए? 9:20 AM को। 9:20 AM को रिटर्न आ गए। तो हमें निकालना है कि वो जो स्कूल की बस है वो कितने टाइम तक बाहर थी।
लॉन्ग डिड द बस टेक द मेक द मॉर्निंग राउंड। तो राउंड मारने के लिए स्कूल की बस कितने टाइम तक बाहर थी। तो हमें 9:20 AM में से 7:30 AM को सब्ट्रैक्ट करना है। ये AM कट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है कि कितना मिनट्स लग गया है। अभी देखो 20 में से 30 माइनस होगा क्या, 20 में से 30 माइनस होगा क्या, हमें पता है कि 1 आवर्स यहाँ पे भी एस नहीं आता है, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होगा। 20 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे 9 को कट करके 8 लिख देंगे एंड 9 को कट करके हमने 8 लिख दिया है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 20 में 60 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो गया है 80 हो गया। अभी 80 में से 30 को माइनस कर सकते हैं, 0 में से 0 गया 0, ये भी कट हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0 बच गया है। 8 में से 3 गया तो कितना बचता है 5 बचेगा। और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 बचता है। मतलब जो स्कूल की बस है वो कितने टाइम तक बाहर थी, 1 आवर्स 50 मिनट तक, 1 आवर्स 50 मिनट तक स्कूल की बस क्या थी, बाहर थी, राउंड मार रहे थी। तो यहाँ का आंसर क्या आता है, 1 आवर्स 50 मिनट्स तक स्कूल की बस क्या थी, बाहर थी, 1 आवर्स 50 मिनट्स। क्योंकि हमने 9:20 में से, मतलब स्कूल में बस कब रिटर्न आ गई उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है स्कूल से बस कब निकली थी। 7:30 को स्कूल से बस निकली थी और 9:20 को रिटर्न आ गए। तो हमारी जो स्कूल की बस है उसको कितना टाइम लगा राउंड मारने के लिए, तो उसके लिए हमने 9:20 में से 7:20 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अभी 7 है, सॉरी 30 है, 20 में से माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कैरी लेंगे। 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट होगा। जब हम आवर से मिनट्स में कैरी करेंगे तब क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा यहाँ पे ऊपर उसमें हम 60 को ऐड करेंगे। 20 में 60 ऐड करेंगे तो कितना होता है 80 होता है। अभी 80 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना होता है 150। कितना होता है 150 होता है। तो ये जो स्कूल की बस है उसको राउंड मारने के लिए कितना लगा, 1 आवर्स 50 मिनट्स लगा। कितना लगा है 1 आवर्स 50 मिनट्स लगा है। तो ये हो गया सेकंड नंबर का। नाउ थर्ड नंबर, इन द क्रिकेट मैच द बॉलर टेक अ 5 मिनट्स टू ब्लो एन ओवर, हाउ मेनी ओवर आर बाउल्ड इन द ओवर्स। देखो जो क्रिकेट मैच चल रही थी, जो बॉलर था वो 5-5 मिनट के बाद क्या कर रहा था, एक ओवर कर रहा था, 5-5 मिनट के बाद ओवर कर रहा था। तो इन ओवर्स 1 घंटे में उसने कितने ओवर कर दिए वो निकालना है। 1 आवर्स में उसने कितने क्या किए हैं, 1 आवर्स में उसने कितने ओवर किए हैं वो निकालना है। तो 1 आवर्स इक्वल टू कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है। तो हमें 60 मिनट को 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने 5 मिनट्स के बाद क्या कर रहा है, ओवर कर रहा है। तो हमें निकालना है कि इसने जो बॉलर था उसने कितने ओवर किए हैं वो निकालना है। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, बॉलर टेक अ बाउल एंड ओवर, बॉलर ओवर कर रहा है, टेक बाउल एंड ओवर कर रहा है 5 मिनट्स के बाद। कितने मिनट्स के बाद, 5 मिनट के बाद। हमें पता है कि 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि 1 आवर्स में उसने कितने ओवर किए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट को 5 के साथ डिवाइड करना पड़े। ओवर आर बाउल्ड इन एन आवर्स, 1 घंटे में उसने कितने ओवर्स किए। तो 60 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 60 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 12। कितना होता है 12 होता है। कितना होता है
12 होता है, 12 5 सा 60। तो उसने उसने 1 घंटे में कितने ओवर किए हैं? 12 क्या किए हैं? उसने 1 आवर्स में कितने ओवर किए हैं? 12 ओवर्स किए हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ 4, क्लासेस एंडेड एट 3:50 PM। क्लास एंडेड हो गया 3:50 PM को। आफ्टर द क्लास होने के बाद द चिल्ड्रन वॉच अ फिल्म शोइंग लास्टिंग 30 मिनट्स। क्लास ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट ने मूवी देखना स्टार्ट किया और वो मूवी थी, फिल्म्स थी 30 मिनट्स की। व्हेन वॉज द फिल्म शो ओवर, तो फिल्म का शो कब ओवर हो गया वो निकालना था। क्लास कब ख़त्म हो गया है? 3:50 PM को। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया है 30 मिनट्स का मूवी, फिल्म स्टार्ट कर दी। तो वो जो फिल्म्स थी वो कब ख़त्म हो गई वो निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3:50 PM में ऐड करना पड़ेगा 30 मिनट, तभी हमें पता चलेगी कि वो जो फिल्म्स थी वो कब ख़त्म हो गई, टाइम कब ख़त्म हो गया था। सो लुक एट इट। क्लास एंडेड, क्लास कब एंडेड हो गया है? 3:50 PM को। कब एंडेड हो गया है? 3:50 PM को। आफ्टर क्लासेस चिल्ड्रन वॉच फिल्म्स। क्लास होने के बाद स्टूडेंट ने वॉच करना मूवी फिल्म स्टार्ट किया 30 मिनट्स तक। द फिल्म शो ओवर, कब ओवर हो गया वो निकालना है, मतलब कौन से टाइम पे ओवर हो गया फिल्म्स वो निकालना है। तो 3:50 AM में हम ऐड करेंगे 30 मिनट्स में, क्योंकि 3:50 को उनका क्लास ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो 30 मिनट्स की फिल्म्स देखी उन्होंने। तो हमें निकालना है कि उनकी जो फिल्म्स है वो कब ख़त्म होगी। तो अब हम ऐड करेंगे 0 + 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है, और यहाँ पे 3 होगा। तो ऐसे अभी हम कभी बोलते हैं क्या 380 होता है क्या? नहीं होता है। और 60 मिनट्स के बाद क्या हो जाता है? 60 मिनट्स के बाद यहाँ पे क्या है? 380 है। ओके, 3 आवर्स 80 मिनट्स। तो 360 जब हो जाएंगे तब कितने हो जाएंगे? 4 o'clock हो जाएंगे। कितने होते हैं? 4 o'clock हो जाते हैं। 60 मिनट होने के बाद कितना होता है? 4 o'clock होंगे। तो 80 में से हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 80 में से 60 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 420। मतलब उनकी जो फिल्म्स थी वो कब ख़त्म हो गई? 420 को। फिर से एक बार बताओ, 4:20 PM को। देखो, उन्होंने जो फिल्म्स थी कब स्टार्ट कर दी? 3:50 को स्टार्ट कर दी। कब स्टार्ट कर दी? 3:50 को स्टार्ट हो गई, जब उनका क्लास ख़त्म हो गया। और जो उन्होंने फिल्म्स देखी है वो कितने मिनट्स की है? 30 मिनट्स की है। कितने मिनट्स की है? 30 मिनट्स की है। तो 0 + 0 कितना होगा? 0 होगा। 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कभी ऐसे हम टाइम बोलते हैं क्या 380 हो गया है? जब 60 मिनट्स होते हैं तब क्या होता है? 1 आवर्स होता है। जब 60 मिनट्स हो जाएंगे कितना टाइम आ रहा है? 380 आ रहा है। ओके, 380 आ रहा है। जब 60 मिनट्स हो जाएंगे तो 1 आवर्स होता है। तो अभी हम 1 आवर्स होता है तो हम क्या करेंगे? 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? 60 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 60 को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 60 को 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना होता है? 20 होता है। 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो कितना टाइम होता है? 420। हम ऐसे भी काउंट करके देख सकते हैं। 3:50 को मूवी स्टार्ट हो गया और उसके बाद 50 मिनट्स क्या टाइमिंग होगा? 3:50 को मूवी स्टार्ट हो गया और उसके बाद 30 मिनट्स क्या टाइमिंग होगा? क्लॉक में देखेंगे तो 420 होता है। कितना होता है? 420। हमने क्या किया है? 350 को फिल्म स्टार्ट हो गई और ख़त्म कौन से टाइम पे हो गए? 30 मिनट्स के बाद ख़त्म हो गए। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आता है? 3 + 5 80 होता है। लेकिन जब हम
जब क्लॉक में 80 ऐसे कभी रीड करते हैं क्या 380 हो गया टाइम ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 1 आवर्स के बाद कितना होता है 60 मिनट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 80 है, 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आवर्स कैरी हो जाएगा। 1 आवर्स कैरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 आवर्स कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 है 80 है उसको दोनों 50 है 30 है इसको हम दोनों को मिला देंगे, सिर्फ मिनट को मिला देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे 80 लिख देंगे। ठीक है, तो 80 मिनट्स मतलब कितना 80 मिनट्स मतलब कितना टाइम होगा? अगर इसमें से हम 80 मिनट्स मतलब कितना टाइम होगा 1 आवर्स 20 मिनट्स होगा। 1 आवर्स 20 मिनट्स हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया है 80 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आवर्स ये हो गया है, 1 आवर्स ये हो गया है एंड 20 मिनट्स बच गया है। क्या हो गया है 20 मिनट्स बच गया है। तो ये कितना हो जाएगा 1 आवर 60 मिनट्स हो जाएगा। 1 आवर 60 मिनट्स हो जाएगा। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5। स्कूल स्टार्टेड एट 9:30 AM। स्कूल स्टार्ट हो गए 9:30 AM को। आफ्टर द पीरियड लास्टिंग 50 मिनट्स। तो इसके बाद 1 पीरियड हो गया, वो कितने मिनट्स का है 50 मिनट्स का है। द चिल्ड्रन हैड अ ब्रेक। चिल्ड्रन 1 पीरियड के बाद उनका ब्रेक था। एट द व्हाट टाइम वॉज द ब्रेक। तो उनका ब्रेक कितने टाइम पे था वो निकालना है। उनकी स्कूल कब स्टार्ट हो गई 9:30 AM को स्टार्ट हो गए और उसके बाद उनका 1 पीरियड था, वो कितने मिनट्स का था 50 मिनट्स का था। और 50 मिनट्स के ब्रेक के बाद 50 मिनट के ब्रेक के बाद क्या हो रहा है 50 मिनट्स के ब्रेक के बाद 50 मिनट के क्लास के बाद उनका ब्रेक आ रहा है। तो कौन से टाइम पे हमारा क्या आ रहा है ब्रेक आ रहा है वो निकालना है। तो हमें 9:30 AM में ऐड करना पड़ेगा 50 मिनट्स को। तो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। स्कूल स्टार्टेड इक्वल टू 9:30 AM। स्कूल कब स्टार्ट होगी 9:30 AM को। 1 पीरियड इक्वल टू 50 मिनट्स। उनका 1 पीरियड कितने मिनट्स का था 50 मिनट्स का था। आफ्टर द 1 पीरियड स्टूडेंट हैज़ ब्रेक। 1 पीरियड के बाद उनका ब्रेक था तो टाइम वॉज द ब्रेक। ब्रेक का टाइम क्या है 9:30 AM में 50 मिनट्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे भी सेम है, अभी जैसे हमने किया था 0 + 0 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 है। 9:80 आ गया है। क्या आ गया है 9:80 आ गया है। हम कभी टाइमिंग ऐसे बोलते हैं 9:80 मतलब 1 आवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट्स हो जाएगा। 1 आवर्स इक्वल टू अभी हम क्या करेंगे एक और मेथड है 60 को 80 के साथ डिवाइड करेंगे। 60 को 80 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 61 से 60 एंड 20। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 20 आ रहा है और 1 यहाँ पे कैरी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 20 को उनका क्लास 20 को उनका क्या आ रहा है ब्रेक आ रहा है। 10 20 को उनका क्या आ रहा है ब्रेक आ रहा है AM को। 10:20 AM को उनका ब्रेक आ रहा है। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे जो मिनट है उसको ऐड कर देंगे। 30 मिनट्स एंड 50 मिनट्स इसको ऐड कर देंगे। 80 मिनट्स होता है तो 80 मिनट्स मतलब हमें पता है 80 में से अगर हम 80 को अगर 80 मिनट्स मतलब क्या होता है 80 में से अगर 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब ये 1 आवर से 1 आवर्स हो जाएगा। 80 में से 60 को माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 20 होगा, मतलब 1 आवर्स 20 मिनट्स। 1 आवर्स 20 मिनट्स हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक है क्या है ब्रेक है वो कितने मिनट्स का कितने मिनट पे था 10:20 AM को था। क्या किया हमने 9:30 है उसमें 50 मिनट्स को ऐड कर दिया क्योंकि उनका जो ब्रेक है वो कितने 1 पीरियड के बाद है। 1 पीरियड कितने मिनट्स का है 50 मिनट्स का है। 9:30 को उनकी स्कूल स्टार्ट हो रही है तो 9:30 में हम
50 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो क्या होता है, 0 + 0 0 हो जाएगा, और 3 + 8 क्या होता है, 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। लेकिन कभी हम टाइमिंग 980 ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 में से हम क्या करेंगे, 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आवर्स यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या टाइमिंग आ गया, 10:20 आ गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, गोपाल listed to our concert which beginning at the same 7 p.m. Where did the concert end? गोपाल ने जो कंसर्ट है मतलब गाने सॉन्ग का जो प्रोग्राम्स होता है वो स्टार्ट कर दिया है 7 PM को, और वो ख़त्म हो गया है 2 घंटे के बाद। तो उसने कितने टाइम तक क्या किया है, कंसर्ट को सुना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 में 2 आवर्स को ऐड करना पड़ेगा। 7 PM में 2 आवर्स हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 PM। 2 घंटे के बाद क्या होगा, 9 PM, मतलब उसका स्टार्ट कंसर्ट कब किया, 7 PM को, एंड कब किया है, 2 घंटे के बाद, मतलब 7 PM ने हमने ऐड कर दिया 2 आवर्स को। तो ये कितना आ गया, 9 PM आ गया। मतलब उनका जो कंसर्ट है, जो उनका सॉन्ग का प्रोग्राम है वो कब ख़त्म हो गया है, 9 PM को ख़त्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो सुना है कितने घंटे तक, 2 घंटे तक उन्होंने सुना है। Now all of you look at example number 7. Example number 7. Example number 7. In the Sita school, the lunch interval is between the 12:50 PM and 1:20 PM. व्हाट इज़ द ड्यूरिंग द लंच इंटरवल? सीता के स्कूल में लंच का इंटरवल 12:50 को स्टार्ट होता है और 1:20 को ख़त्म होता है। तो उनका जो लंच का इंटरवल है वो कितने टाइम्स का है वो निकालना है। लंच इंटरवल उनका कितने टाइम्स का होता है वो निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1:20 PM में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12:50 PM को, तभी हमें पता चलेगा कि उनका जो लंच का टाइमिंग है वो कितने टाइमिंग का था। सो नाउ लुक एट हियर, सीता स्कूल लंच इंटरवल इज बिटवीन द 12:50 PM एंड 1:20 PM। सो हमें निकालना है कि द लंच इंटरवल, उनका लंच का इंटरवल कितना था। तो उसके लिए हमें 1:20 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12:50 को। ओके, PM यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे देखो 12 है और यहाँ पे 1 है। 1 में से ये 12 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो हमें पता है 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13 आता है। अगर हम 24 आवर्स वाली क्लॉक देखेंगे, 24 आवर्स वाली क्लॉक देखेंगे तो उसमें टाइमिंग आता है 12 के बाद आता है 13 मतलब 1, 13 मतलब 1 होता है। देन 14 मतलब 2 होता है। 15 मतलब 3 o'clock होते हैं। देन 16 मतलब 4 o'clock होते हैं। 16 मतलब 4 o'clock होंगे। 17 मतलब 5 o'clock होंगे। देन 18 मतलब 6 o'clock होते हैं। 19 मतलब 8 o'clock होते हैं। देन उसके बाद 20 मतलब 9 o'clock होते हैं। 21 मतलब 10 o'clock होंगे। 22 मतलब 11 o'clock होंगे। एंड 23 मतलब, सॉरी कुछ गलत हो गया, 13 मतलब 1 o'clock। 14 मतलब 2 o'clock। 15 मतलब 3 o'clock। 16 मतलब 4 o'clock। 17 मतलब 5 o'clock। देन 18 मतलब 6 o'clock। 19 मतलब यहाँ पे 7 आता है, 7 o'clock। 20 मतलब 8 o'clock। 21 मतलब 9 o'clock। 22 मतलब 10 o'clock। 23 मतलब 11 o'clock एंड 24 मतलब 12 o'clock। अगर हम 24 आवर्स वाली क्लॉक देखेंगे तो हमें ऐसा टाइम दिखता है।
13 o'clock मतलब 1 o'clock हो जाता है क्लॉक में, 14 o'clock मतलब 2 o'clock हो जाएगा, 15 o'clock मतलब 3 बज जाएंगे, 16 मतलब 4 o'clock। तो ये हमारी क्लॉक होती है 24 आवर्स वाली। कितने आवर्स वाली? 24 आवर्स वाली। अगर 12 o'clock आवर्स वाली क्लॉक देखेंगे तो सेम 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे फिर से रिपीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 24 आवर्स वाली क्लॉक देखेंगे तो 12 के बाद स्टार्ट होता है 13 14 15 16 ऐसे स्टार्ट होता है। तो 13 मतलब 1 o'clock होता है। तो यहाँ पे देखो 1 o'clock है, 1 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? तो नहीं, यहाँ पे हम कट करके इसको 13 कर देंगे और यहाँ पे 20 एज इट इज़ कर देंगे। ठीक है, अभी 13 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0 - 5 होगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 2 गया 1, यहाँ पे। तो उनका जो लंच इंटरवल था वो कितने टाइम का था? 1 hours 5 minutes। 1 hours 5 minute का उनका लंच इंटरवल था। 1 hours 5 minute का उनका लंच इंटरवल था। यहाँ पे 1:20 PM है। ठीक है, 1:20 PM को हमने जो 1 है उसको 13 में कन्वर्ट किया। जब हम 24 आवर्स वाली क्लॉक देखते हैं तो 1 से क्या स्टार्ट हो जाता है? 13 स्टार्ट हो जाता है। तो हमने 1 को 13 में कन्वर्ट कर दिया है, ये 20 को एज इट इज़ लिख दिया है। अभी 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया है और 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। तो जो हमारा टाइम इंटरवल है वो कितना हो गया है? 1 hours 5 minutes का हमारा टाइम इंटरवल हो गया है। Now example number 8. Ali was fishing continuously for 8 hours. अली ने फिशिंग स्टार्ट किया है कंटिन्यूसली और उसने कितने टाइम तक किया है? 8 hours। ही बिगनिंग 10 AM, उसने स्टार्ट कर दिया है 10 AM को। व्हाट डिड ही स्टॉप? तो वो कब स्टॉप हो गए वो टाइमिंग निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लुक एट हियर। 10 AM में हम 8 hours को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 18 hours हो जाएंगे। हमें निकालना है कि मतलब 18 हो जाएगा। हमें निकालना है कि उसने कितने टाइम तक कौन से टाइम पे फिशिंग ख़त्म हो गया था। 18 मतलब मैंने अभी बताया था, 18 मतलब क्या होता है? 18 मतलब 6 o'clock। 12 के बाद 18 मतलब हमें अगर निकालना है 18 मतलब क्या टाइमिंग होगा, तो हम क्या करेंगे? 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 12 गया तो 6, 1 में मतलब कितने बजे होंगे? 6 o'clock। 10 बजे उसने स्टार्ट किया है, 10 बजे उसने स्टार्ट किया है फिशिंग और उसने ख़त्म किया है 8 घंटे के बाद। तो क्या आता है? 18 आता है। क्या आता है? 18 आता है। 18 मतलब क्या होता है? 6 o'clock। 18 मतलब क्या होता है? 6 o'clock। मतलब उसने फिशिंग करना कब ख़त्म हो किया है? 6 o'clock को ख़त्म हो गया है। ने क्या किया है? 12 में से 18 में से 12 को माइनस किया है तो कितना आता है? 6 o'clock। 6 o'clock कब होगा? अभी PM हो जाएगा। 12 के बाद PM स्टार्ट होता है, AM को उसने स्टार्ट किया है, 10 AM को स्टार्ट किया है। 12 के बाद क्या स्टार्ट होता है? PM स्टार्ट होता है। तो उसने फिशिंग कब तक की है? 6 PM तक। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। देन द कैलेंडर this we will be seeing in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.